Hello and good afternoon, everyone. This is Chef Ajay Chopra back again in your life on your screen. Well, I hope that this whole journey of bringing your food business alive has taken some shape. मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप लोगों से बांटा गया है उससे आपके एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ चुका है, आपके दिमाग में एक पैटर्न बन चुका है, एक प्लान बन चुका है, एक बिजनेस प्लान तैयार हो रहा है. And I hope that you are now ready to launch your business plan. Now, as we had promised to you that आपका बिजनेस जो है वो दो तरीके से हो सकता है. एक वो लोग होंगे जो घर से रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बेचना चाहते हैं या घर से फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और इस टाइप के लोग होंगे जो अपने खाने को YouTube पे डालना चाहते हैं, बाकी सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर डालना चाहते हैं और YouTube स्टार्स बनना चाहते हैं. तो आज मेरा सौभाग्य है. आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू हैव some wonderful people around me, and I'm going to introduce them to you. They are actually ruling the YouTube world. They are going to share their time. They're going to share their tricks and tips of how to go about carrying on your YouTube journey, how to become a YouTube star, and also not just to become a star but also to bring value in different people. So आप सब ने आई थिंक इन नामों को सुना है और देखा भी होगा. तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज हेमा सुब्रमण्यम जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शंपा जी, शंपास किचन, मधुरा जी, मधुराज किचन, बहुत बढ़िया मराठी खाना वहाँ पे सिखाती हैं, कवितास किचन सब लोग जानते हैं. एंड सो ये चारों लोग जो कि दिग्गज हैं बिल्कुल इस YouTube वर्ल्ड में, they are going to be alongside today, and they're going to share their pearls of wisdom. So I would like to invite all of you all. Thank you very much for joining us for Maggie Desh ke liye 2 minute apna food business ke liye. So over to Hema ji. I think you could start telling us about your journey and tell us about how from home cooking it became home cooking show. Good evening, good afternoon, everybody. Very nice to be here. So home cooking started on YouTube. We started about in 2013, and actually we had our private company, and we actually started a cooking show for the company. And later on, we had gone on YouTube. So we started a bit later, but slowly it took baby steps for us to get where we are right now. So it's a very long journey for me. It's been a 10-year long journey. Initially, we did the cooking show was on outdoors. If you see my earlier videos, it was outdoor. We just had a little table, and we would just do it in the garden. That's how I started, and with just one camera. And I would just do very simple. It was something that my husband said, "Do you want to just do a cooking show for us for the company?" I said, "Okay, why not? Let me try it." And that's how it started. And I love food. I'm personally a big foodie. I love food. And I think that's what made me start this. So, I wanted to try something. And I started doing these little shows, very amateurish. Initially, I had no clue about cooking, but I learned, along the way and improved myself, kept updating myself. And of course, we have a team. I didn't do it by myself. Of course, through my husband's company, we started. So we had a small team, just like a camera crew, and of course we have people to edit also. So that's how we started. And right now, of course, on YouTube, we're pretty big, and Facebook as well, and on Instagram. And we have 3 channels. The Home Cooking Show is the English channel. We have the Home Cooking Tamil and the Home Cooking Telugu. So we have 3 channels now, and it's really been a great journey. And we have a big team now of about 10 people working around all the 3 channels. So just on this journey, I would also like to know that there were challenges that you faced alongside. Can you also tell us about those challenges? Because जब लोग नया शुरू करते हैं, including me, and I'll be very honest, I was a hotel chef. मेरी जर्नी 24 साल पुरानी है, लेकिन मेरी YouTube जर्नी शायद 3 साल पुरानी है, और मैंने बहुत सारे challenges face किए. So I think सबके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने challenges भी साथ में बताएं. So definitely I had a lot of challenges of selecting recipes, how consistent you have to be if you're going to start a channel. The important thing is you have to work very, very hard, be consistent with your recipes, listen to your audience,
see what they want, understand your audience first, see what they really want and where they're coming from. So these things are very important. Choosing recipes and sharing tips or whatever it is, but you have to make yourself different or unique if you want to stand out. So that's something, of course, everybody is unique in their own way, but I think you need to have something for yourself and say, okay, this is what I'm made up of. So I pick recipes which are very simple. I try to simplify it. Even if it's a complex recipe, I try to simplify it and I share it with everybody, just like how I do it at home. And the challenge I faced was, I think, when we started, when we did it outdoors, of course, there were a lot of other, you know, how the environment, the challenges were there doing outdoors. So we had a lot of that. But now I have a studio here, so we do it indoors. So in terms of light or anything else, it's all fixed. So I think I don't know what other challenges I would like to share, but of course, in terms of selecting recipes, would definitely would have been a challenge for me. Great. So I pick up that, you know, consistency is the key. Hard work is the key. There is no substitute for that. So moving on to Kavita ji. Kavita ji, when did your journey start? Tell us about your journey and how it all happened. Thank you so much, Ajay ji. और यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच अपना फूड बिजनेस एंड मैगी। तो मेरी जो जर्नी है वो 2014 में शुरू की थी, आज से ठीक 6 साल पहले। कुकिंग का शौक बचपन से ही था। मम्मी के साथ हमेशा मम्मी चॉपिंग वगैरह करके देती थी और बोलती थी कुक का मतलब गैस के पास तुमको खड़े रहना है, क्योंकि मम्मी का थोड़ा वेट ज्यादा था तो वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। तो वो हमेशा किचन में जमीन पे बैठ के सारी चॉपिंग वगैरह करके देती थी और बोलती थी कि आगे की सब्जी तू बना। तो 4 या 5 क्लास में थी, तब से मैंने वो जो मसाले का अंदाज होता है ना कि ये मसाला कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, तेल कितना डालना है, तो बेसिक जो कुकिंग के थे वो बहुत पहले ही क्लियर हो चुके थे। और हमारे घर में मेड वगैरह नहीं होते थे, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस मजबूरी थी कुकिंग करना। अगर आप सोचे तो वो मजबूरी थी। तो उसके बाद शादी के बाद जब मैं यूके थी, तो यूके में हमेशा मतलब इंडियन कुजीन के लिए हम जाते हैं ना कहीं भी अब्रॉड, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में जाना है तो बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है तो फिर हम मिस करते हैं इंडियन फूड को। तो वहां पे मैंने बहुत सारे कुजीन, बहुत सारे वीडियो देखे, आपके भी वीडियो देखे, वाशेफ के वीडियो देखे, संजीव जी के वीडियो देखे, हरपाल जी के वीडियो देखे, तो सबके वीडियो देख देख के मैं ट्राई करती थी जो कुजिन मेरे को नहीं आता था। उसके बाद जब इंडिया आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना चैनल शुरू किया जाए, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाने लगा और मेरे पास कम टाइम, मतलब दोपहर में बहुत टाइम रहता था। तो मैंने ये सोच के कि जो मैं डेली बनाती हूँ वही रेसिपी मैं ऐसे ही शूट करके डालती हूँ। और मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब में मतलब आप अर्न भी कर सकते हो, आपका चैनल भी है या यूट्यूब ऑफिस भी कुछ होता है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मेरी फ्रेंड थी, वो आर्टिस्ट थी, तो वो पेंटिंग वीडियो बनाती थी, तो उससे इंस्पायर होके मैंने बोला कि मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करती हूँ, मेरा थोड़ा टाइम कटेगा। और फिर मैंने नवंबर 2014 में चैनल क्रिएट किया और मैंने एक बहुत ही बेसिक रेसिपी बनाई, भिंडी फ्राई। और उसके बाद मैंने फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को बताया, तो सब शॉक्ड कि ये क्या, मतलब ये सब यूट्यूब पे खाना बनाने का क्या है। मैंने कहा कि ऐसे ही मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को एडिटिंग वगैरह, जब मैंने फर्स्ट वीडियो एडिट किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, ऐसे करके 100 वीडियो मैंने बना दिए। और मेरे चैनल पे शायद 100-200 सब्सक्राइबर ही होंगे, लेकिन मुझे वो काम करना अच्छा लगता था। आई एम नॉट बॉदर अबाउट कि उसमें, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि पैसे मिलेंगे, मतलब अर्निंग तो पता ही नहीं थी। फिर उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइजेशन का मैसेज आया तो चैनल मोनेटाइज हुआ। फिर उसके बाद मेरी 98th मतलब 89 रेसिपी बनाने के बाद मेरी जो 98th रेसिपी थी वो लोगों को पसंद आई। और उसके बाद मेरे यूट्यूब का ग्राफ बढ़ने लगा, चैनल में व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और फिर वो मुझे फीडबैक देते थे कि आपके चैनल में ये अच्छा लगता है, ये चीजें अच्छी लगती है। तो मैंने उस पॉइंट्स पे ज्यादा काम करना शुरू कर दिया जो व्यूवर्स के फीडबैक होते थे। मैंने अपने चैनल पे हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि जो ऑडियंस बोलती है, क्योंकि ऑडियंस की वजह से हम यहाँ पे हैं, तो जो आपके व्यूवर्स बोलते हैं उस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर वो बोलते हैं कि ये आप ऐसा करो, ऐसी चीजें सही होनी चाहिए, तो उस चीज को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है। और बीइंग अ डिजिटल क्रिएटर ऐसा होता है कि नेगेटिविटी भी होती है, लोग ट्रोलिंग भी करते हैं, आपको एब्यूजिव कमेंट भी करते हैं। लेकिन मैंने ये इस दिमाग में क्लियर किया था कि अगर नेगेटिव कमेंट से इम्पैक्ट नहीं होना है मेरे को, अगर मेरे को एक 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 बंदा खराब बोल रहा है तो 99 लोग मेरे को अच्छा बोल रहे हैं। तो एक पॉजिटिविटी जो होता है दिमाग में, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस व्यूअर्स के कमेंट्स को कोऑपरेट करना अपने में, तो ये सारी चीजें शायद मेरे चैनल में ग्रोथ लाई।
और उसके बाद मैंने मेहनत बहुत ज्यादा किया। मतलब अगर आज 6 साल में कभी ऐसा दिन नहीं हुआ होगा कि मैंने एक भी दिन जो मेरा वीडियो शेड्यूल डे है वो मैंने मिस किया होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर, तो मेरा वीडियो जाना है। तो वो जो डेडिकेशन होता है शायद वो मेरे में है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को ऐसा सेटअप चाहिए, ऐसा लाइट चाहिए। मेरे को लगता था कि लोग कढ़ाई जो है, कढ़ाई के अंदर की चीज से उनको मतलब है, तो मैंने सिर्फ उसी पे ध्यान रखा कि सिर्फ गैसों पे मेरा दिखना चाहिए। हाँ, और जो बारीकियां थी उस पे मैंने काम किया कि लोग किस किस चीज पे ज्यादा, जैसे अगर बैचलर है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कितने देर पकाना है, ढक्कन खोल के पकाना है या ढक्कन बंद करके पकाना है। तो मैंने वो सारी चीजें डिटेल रखी, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो बहुत सारे बैचलर्स के कमेंट आने लगे कि बहुत माइनर डिटेल आप देते हो जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मेरे को लगा कि मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो शायद कुकिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो मैंने उस चीज को ही अपना यूएसपी बना लिया कि मैंने ये दिमाग में रखा कि मेरा अगर छोटा भाई है, वो हॉस्टल में रहता है, अगर उसको खाना बनाना होगा तो वो क्या क्या समझेगा। आज मेरा भाई है, वो अलग, मतलब वो ऑफिस जाता है लेकिन खाना मेरा वीडियो देख के ही बनाता है, लेकिन फोन करके नहीं पूछता। तो ये चीजें लगती है कि जब मेरे भाई को ये चीज हेल्प करती है तो दूसरे को भी हेल्प करती है। तो एक पर्सनल टच जो होता है वो मैं कोशिश करती हूँ वीडियो में देने का, और शायद ये लोगों को पसंद आता है। तो मेरे चैनल पे अगर मैं सजेशन, मतलब अगर मेरे को व्यूअर को या किसी को बताना होगा तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि क्या कहते हैं, वीडियो में माइनर डिटेल दिखाइए तो वो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी ऑडियंस को हमारी किस टाइप की रेसिपीज अच्छी लगती है। बहुत लोगों को डेजर्ट अच्छा लगता है, बहुत लोग, जैसे बहुत सारे चैनल की भी कैटेगरी होती है, कोई डेजर्ट के लिए पॉपुलर होता है, कोई सब्जी के लिए पॉपुलर होता है, कोई मिठाई के लिए पॉपुलर होता है। तो उस केस में मैं चाहूंगी कि जैसे मेरे मेरे चैनल पे लोग ज्यादा जो डेली कुकिंग होता है, डेली कुकिंग के जो रोटी सब्जी दाल चावल वो ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं अपने चैनल पे कोशिश करती हूँ कि मैं उसी टाइप की रेसिपीज पसंद करूँ। तो मेरे हिसाब से ऑडियंस को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा लंबा भाषण हो गया। Yes. नहीं, बट बहुत अच्छा था कविता जी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपने बोली। 9.7 मिलियन फॉलोअर्स, कोई छोटी बात नहीं होती। और अगर 6 साल में आप वहां तक पहुंची हैं तो आई थिंक सबको ये बात की मोटिवेशन मिल सकती है कि हम सब भी वहां पहुंच सकते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और दूसरी चीज जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बोली वो ये है कि अपने कंज्यूमर या फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी आवाज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट itself nails everything. Moving over to मधुरा जी। मधुरा जी, आपका महाराष्ट्रन खाना खैर बहुत फेमस है, और टेल अस अबाउट योर जर्नी। हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड लॉल स्टार्ट, कहाँ से आइडिया आया? आज तो अपना फूड बिजनेस में बहुत लोगों के पास एक चैनल मिल रहा है, उनको एक प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन शायद आप लोगों ने जब शुरू किया था तो आप खुद ही अपने दिमाग में अपने आप को ही प्रोत्साहन दे रही थी। तो आई थिंक वो स्टोरी सुन के लोगों को अच्छा लगेगा। Thank you so much, Adaji. Hi everyone. So I started with Madhura's recipe way back in 2009. So around that time in 2009, YouTube wasn't that known or popular. And the other thing, I was into well settled my full-time job. I was working with a bank in the US. So मेरी बेटी हुई थी and I was on the break कि maternity leave पर थी. So around that time I had enough time कि I started to exploring digital media. So YouTube was one of that platform. So YouTube पर मैं जब भी recipes search करती थी, browse करती थी, तो I found almost all the options like South Indian है, Gujarati है, all the cuisines. But whenever I try to find out Puran Poli recipe या फिर misal pav है, ठेचा है, so I was little disappointed because there wasn't a single recipe revolving around Marathi cuisine. So that was the trigger point for me. Ki, since I was very much interested in cooking, let's leverage this platform and put up the Marathi cuisine globally, since this is a global platform. But the problem was I was into, again, well settled, the dream job we look out for. And getting into the YouTube, it was like completely diving into the unknown. But still, I thought, okay, let's give it a try, because the one benefit was I had a good flexible working time and I was able to spend time with my daughter. So this is how I started with YouTube. And since I'm from commerce background, accounting background, I had no knowledge with how to stand in front of camera, how to face camera.
how to edit the videos, how to write content. So ये सब gradual process थी. Over the period of time, I started learning. I failed, and then I learned. Then I made some changes, improvements, and since then I'm going on. So in between, in 2016, we thought कि बहुत सारी डिमांड थी कि मराठी क्यूजिन है तो हमें मराठी में चाहिए. जैसे I started with English because 2009 में एक मीडिया है जो लोगों के पास पहुंचना है और ग्लोबली, तो आई थॉट कि लेट्स डू इट इन इंग्लिश. फिर in 2016 we started with yet another channel, that is Madhura's Recipe Marathi. So it is purely focused with my vision कि वहां पर जो है I am able to focus on purely Marathi cuisine आपको मिलते हैं. So I can say कि content is the king, then consistency is the kong. You have to be consistent. Now I have 3 running channels, one is in English, Hindi and Marathi. So for Marathi platform, my complete focus is for Marathi cuisine. Now I get quite a lot of questions how you put up so many recipes. Now we have more than 2000 recipes, cumulative to 2000 recipes. So again, it is a process because it's a regional cuisine or traditional cuisine. For traditional thing, we have to rely on our mom or grandmother to get the recipe or to learn the cuisine, that particular cuisine. So I can't stop there because I want to dig in as much as possible. So again, it's a continuous research process for me. I try to dig into old books, cultural books, Maharashtrian cultural books. Therein I get the ideas कि हाँ Maharashtrian cuisine ऐसे बनता था. And over the period of time, these are the changes we have seen or we have witnessed. There is a myth around people कि Maharashtrian cuisine is just about peanuts. So it's not like that. So I try to convince the people, okay, Maharashtrian cuisine is so much rich and diversified. Within Maharashtra, you will find variations. Like if you go to Coconut Belt, you have a leverage of using fresh coconut. If you go to the North Maharashtra, you will find a good amount of usage of bajra and jwari. Like there is saying, "Jithe je shista tithe te, jithe je pikta tithe te shista." So with that vision in mind, I try to put up Marathi recipe content as much as possible, and it's going on since 2009. Yeah, and this I'm trying. I'm still learning. I'm still trying. I'm still exploring. That's great, Madhura ji. That's so great that even after 4.7 million followers on YouTube, that's a big number in any book. You're still able to so humbly say that I made mistakes. You're able to say that, I started. Yeah. So the thing is that is what I want everybody to learn. दोस्तों, इस बात को आपको समझना जरूरी है कि आप कहीं पर भी पहुंच जाओ. और आई थिंक ये हेमा जी ने, कविता जी ने और मधुरा जी ने तीनों ने बार बार रिपीट करके बोला है कि शुरुआत कहीं से भी हो, शुरुआत कैसी भी हो, आपको चलते जाना है. कंसिस्टेंसी विल बी द की. अगर कविता जी ने वहां पे देखा कि यार घर में अगर किसी को खाना बनाना है और उनको जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं, मैं उन दिक्कतों के बारे में बात करना चाहती हूँ. सो उन्होंने अपना चैनल बड़ा बनाने की सोच और विजन नहीं रखी. उन्होंने ये विजन रखी कि मैं किस तरह से लोगों की लाइफ में इंपैक्ट कर सकती हूँ. मधुरा जी ने ये देखा कि बाकी सारी रेसिपीज तो हैं लेकिन महाराष्ट्रियन रेसिपीज है ही नहीं. सबको लगता है कि पीनट से महाराष्ट्रियन खाना बनता है. अरे विदर्भ में अलग बनता है, कोंकण में अलग बनता है. महाराष्ट्रियन खाना बहुत वास्ट है. इनफैक्ट महाराष्ट्रियन नहीं, साउथ इंडियन खाना, हेमा जी ने साउथ इंडियन खाने को एक अलग लेवल दिया. और आई थिंक होम कुक्स से लेकर YouTube स्टार्स की जो जर्नी है ना, वो आप लोगों के लिए अब शुरू होने वाली है. एंड आई थिंक दीज आर ग्रेट एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिन्होंने अपने घरों से स्टार्ट किया. इनके पास कोई कैनन 5D कैमरास नहीं थे, इनके पास कोई गोडॉक्स की लाइट नहीं थी. जो था उसी से स्टार्ट किया और आगे बढ़ते गए. सो नाउ मूविंग ऑन टू शंपा जी. शंपा जी ने अभी हमने साउथ इंडिया देखा, अभी हमने गुजरात और वेस्ट इंडिया देखा, मधुरा जी से हमने महाराष्ट्र देखा. अब शंपा जी के पास पहुंचते हैं जो हमें बंगाल और उसके आसपास की कहानी और अपनी कहानी बताएंगे. कविता जी ने जिन लोगों के बारे में बताया कि बैचलर्स लोगों के लिए वो खाना बनाता था, एक्चुअली मैं विक्टिम हूँ
क्योंकि मैं शादी से पहले कुछ भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता था। मतलब मैं शादी से पहले स्टडीज में थोड़ा व्यस्त था, तो कुछ भी मतलब कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी मुझे। फिर शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितना मुश्किल है कुकिंग करना, कितना मुश्किल है। मैं अपनी माँ से फोन पे पूछ के खाना बनाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही फूडी हूँ, मतलब बहुत ही खाने का बहुत ही शौकीन हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं जैसे मम्मी को पूछ रही थी, मम्मी को पूछ के खाना बनाती थी, लेकिन उस टाइम में यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब ऐसे फैसिलिटीज नहीं थे कि वीडियो देख के मैं कुकिंग करूँ। फिर जब थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि मतलब उसके 3-4 साल बाद जब मैं पूरी तरह से एक शेफ, मतलब कुकिंग में इंटरेस्ट मुझे आ गया बनाते बनाते, और अपने दोस्तों को खिलाते खिलाते ऐसा लगा कि मतलब बहुत सारे उन लोगों जिनको हम खिलाते थे वो अप्रिशिएट करते थे कि ये बहुत अच्छी बनी है, ये चिकन बहुत अच्छी बनी है, ये मच्छी बहुत अच्छी बनी है। बंगाल में तो फिश बहुत पॉपुलर है, फिश रेसिपीज बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे हम लोगों को फिश रेसिपीज होता है। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ एकदम कविता जी के तरह, कि अगर मैं एकदम कैसे बनाते हैं कुकिंग करते हैं वो वीडियो अगर मैं बना सकूं, तो लोगों को बहुत आसानी होगी कुकिंग करने में। उसी से मैंने स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया, मेरे पास भी कोई मतलब कैमरा नहीं थी, एकदम मोबाइल फोन से एकदम बेसिक मेरे किचन में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। रात को हम वीडियो बनाते थे, क्योंकि दिन में बहुत शोर रहता था, तो रात को मतलब 12 बजे के बाद मैं और मेरे हस्बैंड कुकिंग वीडियोस बनाते थे, और फिर अगले दिन उसे एडिट करके डालते थे। मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी पहले, मैंने सीखा, मेरे हस्बैंड से मैंने सीखा। वैसे करके जब लोगों से अच्छा फीडबैक मिलने लगी, मतलब बहुत सारे प्यार, बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स के उन्हें बहुत आसानी हो रहा है, जो बाहर रहते हैं, जो बैचलर्स है, जो काम के लिए बाहर रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कैसे कुकिंग। मैं भी छोटी सी टिप्स कुकिंग में डालती हूँ कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम ढक कर रखना है, वो सारी चीज मतलब देती हूँ कुकिंग में टिप्स में। तो लो फ्लेम में कैसे पकाना है, कब फ्लेम को हाई करना है, ये सब मतलब मेरी कुकिंग में वीडियोस में रहते हैं। तो बहुत अच्छे फीडबैक मिलने लगी, तो और इंस्पिरेशन मिलने लगी, चलो ये वीडियो बनाए, चलो ये वीडियो पे। पहले तो 1 वीक शायद वीक में 1 या 2 वीडियो डालते थे, लेकिन ये इंस्पिरेशन के बाद हर रोज वीडियो डालने लगे, बहुत बहुत सारा कमेंट्स आने लगा, और मैं एक एक कमेंट्स को रेगुलर मतलब हर एक कमेंट्स को पढ़ती थी, और उनका रिप्लाई देने के लिए कोशिश करती थी। ये तो बहुत टाइम टेकिंग मतलब काम था, लेकिन किया मैंने, बहुत एफर्ट दिया। तो आज ये रिजल्ट मतलब अभी चल रहा है, पूरा रिजल्ट अभी नहीं मिला है, तो अभी काम पे लगा हुआ है। तो मैं ये कहूंगी कि जो नई चैनल शुरू कर रही है या नहीं इस बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो कुकिंग मतलब कुकिंग पहले से ही अगर ये सोचेगा कि मुझे इनकम करना है, मुझे अर्न करना है, तो वो नहीं, उसमें नहीं चलेगा। क्योंकि पहले आप कुकिंग के लिए आपको मतलब पैशनेट होना चाहिए, मुझे कुकिंग का मतलब शौकीन होना चाहिए, तो फिर ये अपना आप हो जाएगा फिर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे कुछ भी बिजनेस का कुछ भी प्लान नहीं था, मैं तो सिर्फ वीडियो डालता था, और मुझे फीडबैक्स बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सारे लोगों के प्यार मुझे अच्छे लगते थे। मैं तो एकदम मतलब चंपा दी बन गया, बहुत सारे मेरे मतलब परिवार जैसे हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीडबैक मुझे मिली। और मुझे लगता है कि अगर कोई आपके कुकिंग वीडियो देखकर अगर कुकिंग करता है और वो सक्सेस होता है, तो वही बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए है कि कोई अगर कहे जे मेरे आपकी कुकिंग देखकर मैं एक रेसिपी बनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने भी, उनके परिवार से बहुत सारे प्रशंसा मिली उनको, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ कैंपा जी, थैंक यू सो मच, दिस वाज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग आपने जो बोली अभी, कि अगर आप ये सोच के इस बिजनेस में घुसना चाह रहे हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा या कमा लूंगी, या मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग थॉट। आप अगर एक बच्चे को देखें जो क्रिकेट सीख रहा है और उससे पूछें कि आप क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और अगर वो बोलता है कि मुझे रोहित शर्मा बनना है,
तो आई थिंक द एस्पिरेशन इज रॉन्ग, द ड्रीम इज रॉन्ग. आई थिंक उसको अगर वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो दैट ड्रीम इज राइट. एंड आई थिंक यही शंपा जी हमें बता रही हैं. नाउ हेमा जी ने, शंपा जी ने, कविता जी ने और मधुरा जी ने हमें 4 अलग अलग डायमेंशंस बताए. मैं उन चारों को थोड़ा सा कोलेट करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, ताकि सबको समझ में आ जाए. हेमा जी से हमने ये जाना कि शुरुआत करनी बहुत जरूरी है, चाहे कहीं से भी करो, घर की किचन से शुरुआत करो, बहुत सारे फैंसी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, सब चीज जुड़ती जाएगी. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं. हेमा जी ने हमें ये भी बताया कि किस तरीके से वो एक यूनिट बनकर, जैसे उनके हस्बैंड और वो एक यूनिट बनकर काम कर रहे थे. तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको एक टीम चाहिए. अगर आप टीम हायर नहीं कर सकते तो आप अपने घर वालों की मदद लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. कविता जी ने हमें इंटरेस्टिंग चीज बताई आज, उनकी जर्नी. मतलब सब लोग ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि आपकी सिंप्लिसिटी, आपके दिल से जो चीज आती है वो आप बोलती हैं, आपकी जो सच्चाई है वो झलकती है. ऑब्वियसली क्योंकि आप कुछ भी छुपा नहीं रही हैं, आप उस तरह से सोच रही हैं कि अगर मेरा भाई खाना बना सकता है मुझे बिना फोन किए, तो सब लोग बना सकते हैं. तो आप उस लेवल से बोल रही हैं. तो आई थिंक दैट टचेस पीपल्स हार्ट स्ट्रेट अवे एंड दैट इज वेरी वेरी एविडेंट. मधुरा जी, उन्होंने पिक्यूलियर महाराष्ट्रियन क्यूजीन, एक समय आदमी सोच सकता है कि यार मैं अगर सिर्फ महाराष्ट्रियन क्यूजीन सिखाऊंगी तो शायद मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं बढ़ेंगे, शायद इतने लोग आगे नहीं आ पाएंगे. लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि महाराष्ट्रियन क्यूजीन अननोन है, कोई नहीं कर रहा. सो शी फाउंड दैट विंडो की कोई नहीं कर रहा. एंड दैट आई थिंक वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. आसान किसी की जर्नी भी नहीं रही, किसी को 10 साल लगे, किसी को 6, किसी को 8, किसी को 12. जर्नीज विल ऑलवेज टेक लॉन्ग. कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड these channels were not built over 1 or 2 years. बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी चीजें. कविता जी ने एक और चीज बताई कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन वीडियो अगर शाम को 5 बजे लाइव होना है तो वो लाइव 5 बजे ही होगा. ये कहते हैं कमिटमेंट. आपसे मिलने आ रहा हूं मैं, 3 बजे का टाइम देके 5 बजे आऊंगा, आपको कैसा लगेगा? हम मान जाएंगे. सेम चीज है, अगर हमने टाइम दिया है तो हमें उसको टाइम को ऑनर करना है. शंपा जी ने बताया कि स्टार्ट छोटा कैसा भी हो, आगे बढ़ते रहो. पैशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पैशन आपकी डिश में रिफ्लेक्ट करेगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अनपैशनेट कुक हैं और आप सडनली कैमरा पे पैशनेट बन जाएंगे, वो डिश आएगी नहीं. खाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि खाना कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो आपकी टेबल पे हो. खाना अगर अच्छा है ना तो अच्छा दिखेगा भी, अच्छा टेस्ट जरूर करेगा. पर खाना अगर अच्छा नहीं है ना तो वो दिखेगा ही नहीं अच्छा. सो खाना ना तो आपको झूठ बोलने देगा, ना आप झूठ बोल पाएंगे. अगर केक अच्छा नहीं बना ना तो वो बैठ जाएगा, और बैठा हुआ केक पे बिल्कुल व्यूज नहीं मिलेंगे. सो ये सिंपल चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी. आई थिंक लॉट्स ऑफ वर्ड्स ऑफ विजडम. अब मेरे पास 4 सवाल हैं जो मैं 4 अलग अलग तरीके से चारों से पूछना चाहूंगा. सबसे पहला सवाल हेमा जी के लिए. हेमा जी, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक मॉम हैं, और आप एक एंटरप्रेन्योर हैं. एंटरप्रेन्योर मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि जिस तरह की आपने फेम पाई है, वो फेम के साथ साथ बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा हार्डवर्क आता है, बहुत सारे फॉलोअप्स आते हैं. आप वो चीज कैसे मैनेज करती हैं, तीनों चीजों को एक साथ कैसे मैनेज करती हैं? So it was very difficult because when I started doing these shows online, my son was very, very small. So I would drop him at school, then I would go back. I was shooting at my mother's house outdoors. I would start the shoot, finish for the day. I would go pick him up from school and come back. So of course, family is the priority there. So I would do it when I'm free. So that was something there. And of course, my family support was very, very important. And this continued for a very long time. After my son went to high school, he didn't need my, me being there all the time. So then I focused more on the channel. And of course, since we had the team and the support and everything, it was much easier. But of course, these challenges are there. So if you're a housewife, if you're a mom, and of course, my husband's support was immense because he's the one who encouraged. He said, okay, you can go there. I had no idea. I mean, we just moved back from the US, and he started his own company at that time. And that's when he gave me an opportunity. So take the opportunities that you get. This was an opportunity that was given to me. He said, would you want to do a show? I said, yes, I would love to do a show. And he said, okay, go on, I will support you. And that's when I started. And like Shampaji said, passion is everything. I'm very, very passionate about food. So the cooking came later. Because I was so passionate about food and I love food,
I said, I want to try this and I want to do this. And that's how it started for me. And I wouldn't give up no matter what happened. I had a lot of challenges, be it health-wise or be it, time constraints, be it running to school, getting him back home, or, doing the cooking, the chores at home. Everything is there. You will have a lot of challenges to face, but if you're focused and if you think this is something that you want to do for a long term, and if you have the support of your family, I think you can reach great heights. Family support is very, very important. And of course, financial support is also there. So I think these are some things that I try to balance. You have to balance everything and you have to see where your priorities are. So if you're going to focus too much on one, you might let go on the other. So make sure you have a balance of everything and keep rocking and, keep doing. You have to be very passionate and you have to focus and work very, 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 very hard. Wow. So 3 things I pick up from what you've just said. Balance करना बहुत ज़रूरी है. It is very important to balance what you're doing. It is very important to keep going, come what may. क्योंकि आप लोग जब अभी अपना बिजनेस, फूड बिजनेस या यूट्यूब का क्रिएटर बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप थक जाएं. आपको ऐसा लगा नहीं यार बहुत काम कर लिया, मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को जाना है. जरूर जाइए, 1 महीने के लिए छुट्टी जाइए, लेकिन 1 महीने का काम करके जाइए और किसी को लगा के जाइए ताकि वो हर वक्त उसी समय पे जाते रहे. क्योंकि पूरे दुनिया को नहीं पता कि आप छुट्टी पे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने नहीं डाला तो आपकी छुट्टी हो जाएगी. सो it is very important to have that balance, that consistency, and also a lot of love and support from the family. उसके बिना कुछ नहीं हो सकता. That is very, very true. Thank you so much, शेमा जी. Moving on to कविता जी. कविता जी, आपके लिए एक सवाल बहुत ही डिफरेंट सवाल मैं लेके आ रहा हूँ. वो सवाल ये है कि आपने जर्नी देखी है पिछले 6 साल में, और YouTube इंक्लूडिंग काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं. पहले जिस तरह से आप वीडियो डालती थी, फिर आपको थोड़ा सा कंटेंट में चेंज लाना पड़ा, फिर आपको और कुछ चेंज लाना पड़ा. आजकल देखने का नजरिया लोगों का बहुत बदल गया है. आजकल जो यूथ है वो उसको विजुअल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं. तो आप नए क्रिएटर्स को क्या हिदायत देना चाहेंगी, क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगी कि किस तरीके से क्या क्या फोकस करना चाहिए यूट्यूब क्रिएशन में? हाँ, मैं जो अपकमिंग क्रिएटर हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि समय के हिसाब से लोगों को चेंज होना चाहिए. मतलब अगर जैसे मैं पहले शूट करती थी कि मैं अपने पुराने किचन में एक ही साइड में एक ही कैमरा एंगल करके मैंने 4 साल शूट किया, फिर लगा कि वो चीजें मोनोटोनस हो रही है. मतलब लोगों को पता है कि वीडियो चलाऊंगा तो एक कढ़ाई दिखेगी, एक मसाला दिखेगा, एक सब्जी दिखेगी, सेम चीज. तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो व्यूवर्स का कम हो जाता है. वहां पे हमारे दिमाग में क्लियर होता है कि ये बंदी यही बनाने वाली है, तो बस जिसको रेसिपी में इंटरेस्ट होगा वही आएगा. लेकिन अगर आप अपनी वीडियोग्राफी में थोड़ा सा विजुअल चेंज करेंगे तो शायद लोगों को, जैसे अगर आप 2 कैमरा एंगल यूज कर रहे हैं या 3 कैमरा एंगल यूज कर रहे हैं, तो एक फ्रेम से हटके जब दूसरे फ्रेम पे जाता है तो दिमाग डाइवर्ट होता है. तो एक मोनोटोनस जो होता है चैनल पे, मतलब जो देखने का तरीका, तो वो ऑडियंस का इंटरेस्ट बना के रखती है. तो मेरे हिसाब से टाइम के हिसाब से जैसे जैसे चीजें या कैमरा या फिर लाइट अपग्रेड करते रहना चाहिए. समय के हिसाब से लोगों को चेंज करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर मैं 5 साल पहले का वीडियो मैं खुद का देखूं तो मेरे को लगता है कि मतलब मैंने कितना घटिया वीडियो बनाया, ऐसे कौन देखता है. और मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ. मैं सबके वीडियो एंगल देखती हूँ कि इनका खाना देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, मैंने सेम सब्जी बनाई है, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है. तो इट जस्ट बिकॉज आपकी उनकी लाइटिंग अच्छी है, उनके पास कैमरा अच्छे हैं, तो नॉर्मल खाना भी उनके कैमरे पे ज्यादा अच्छा दिखता है. तो मेरे हिसाब से कि जो भी हम वीडियो बनाए उसका प्रोडक्शन क्वालिटी, शुरुआत तो जैसे सबने बताया, बाकी क्रिएटर ने बताया कि शुरुआत तो हमें करना ही है और उसके लिए कोई फैंसी आइटम नहीं चाहिए. लेकिन समय के हिसाब से जब आप अपग्रेड करें चीजों को, जब आपको लगे कि ऑडियंस की अच्छी एक स्ट्रांग पोजीशन बन गई है, तब आपको चीजों को अपग्रेड करना चाहिए. चाहे वो आपके बर्तन हो, स्टोव हो, या लाइटिंग हो, या फिर कैमरा एंगल हो. तो अपग्रेड करना हर चीज में जरूरी होता है मेरे हिसाब से. थैंक यू कविता जी. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग. आपने एक और बात शायद बोलना नहीं चाह रही थी पर आपने बोल दी, मैंने उसको पकड़ लिया. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि शुरुआत करनी ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, जैसे मैंने कहा, कि कोई बहुत हाई फंडा इक्विपमेंट्स हैं, लाइट है, शुरू करिए. लेकिन इस बात को हमेशा दिमाग रखिए कि चेंज इज इंपॉर्टेंट. चेंज होते रहना चाहिए. जैसे आपके बिजनेस में थोड़ा पैसा आएगा, आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कीजिए. जानिए इस बात को कि ये काम मेरे को करना था. हाँ जी, बोलिए कविता जी.
हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे आपने ये बात बताया कि जब मैं पहले शूट करती थी तो मेरे पास ज्यादा मतलब लाइट में वो CFL वगैरह यूज करती थी, और मैं ना दोपहर में 1 से 3 मेरे किचन के साइड से धूप आता था, तो मैं हमेशा वीडियो का जो इंट्रो पार्ट है या वीडियो उस टाइम पे मेरे को शूट करना रहता है कि वो धूप आती है, धूप में थोड़ा चेहरा साफ दिखता है या फिर वीडियो थोड़ा साफ दिखता है, तो मैं हमेशा वो टाइम मेंटेन करती थी। और जब रेनी सीजन होता था तो उस समय धूप नहीं निकलती थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, तो मैं प्लग में 2-3 CFL लगा के और फिर रात को शूट करती थी। तो वो स्ट्रगल फेज होता है, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को 80D चाहिए या कैनन का ये कैमरा चाहिए। जो मेरे पास बेसिक कैमरा था मैंने उसी से किया, और जब मैंने अर्न करना शुरू किया तो मैंने उसी पैसे को रोटेट किया, मतलब मैंने उस पैसे से दूसरा कैमरा लिया। फिर जब मेरी अर्निंग थोड़ी ज्यादा हुई तो मैंने लाइट खरीदे, इस हिसाब से मैंने सेम पैसे को रोटेट किया अपने बिजनेस में। तो ये जरूरी है, मतलब शुरुआत में हम इतना इन्वेस्टमेंट कर दे और हमारे वीडियोस चले नहीं, लोग देखे नहीं या कुछ अर्निंग नहीं हो, तो वो भी एक बेवकूफी है मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल सही है, और ये हर एक बिजनेस का यही रूल है। आई थिंक टेकिंग यू ऑल बैक, हमने आपसे फूड बिजनेस के बारे में बात की है, आपके मेन्यू मेकिंग के बारे में बात की है, तो ये सारी चीजें अगर देखें तो रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर रेस्टोरेंट में देखें या आप अपना फूड बिजनेस देखें कि अगर आप वो मेन्यू बनाते हैं जो लोगों को भी नहीं है तो लोग खाएंगे नहीं, वर्सेस आप वैसा मेन्यू बनाएं जो आपका कस्टमर बोल रहा है, आपकी वॉइस ऑफ कस्टमर, ये बात हमने यहाँ पर भी सुनी। दूसरी चीज, अगर आप अपना फूड बिजनेस खोल रहे हैं और आपको फैंसी इक्विपमेंट, फैंसी चीजें शुरुआत से रखनी है, अगर आपके पास बैंडविड्थ है रखिए, पर ये बात जान लीजिए कि उसका रिटर्न कब आएगा, उस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। इफ यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कविता जी ने बिल्कुल सही बोला, स्टेप बाय स्टेप। अगर आज आपके पास कैनन 5D खरीदने के पैसे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना है, पैसे और किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने खुद लॉकडाउन में अपने फोन से वीडियो शूट किए, मेरे पास कोई कैमरा नहीं था क्योंकि मेरे सारे वीडियो उससे पहले स्टूडियो में शूट होते थे। सब स्टूडियो बंद, मेरा काम बंद, लेकिन मैंने शूटिंग बंद नहीं करी। मेरी वाइफ ने सारे वीडियोस खींचे, फिर हमने एक और कैमरा खरीदा। वी स्टार्टेड टू इन्वेस्ट स्लोली। सो पॉइंट ये है कि आप जैसे जैसे कमाते जाएंगे वैसे वैसे खर्चते जाइए। ट्रीट इट एज अ बिजनेस, डोंट ट्रीट इट एज अ पैशनेट प्रोजेक्ट। नहीं तो आप कभी भी वहां स्केल नहीं कर पाएंगे, कभी भी वहां पहुंच नहीं पाएंगे, कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे। सो थैंक यू कविता जी, वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर न्यू क्रिएटर्स। मधुरा जी के पास मैं जाना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने एक सिंगुलर क्यूजीन को फेमस बनाने की ठान ली। अब अगर आपके पास चॉइस होती उस समय, जैसे आज हमारे पास चॉइस है, आज क्रिएटर्स के पास चॉइस है कि मैं मतलब खाने में ही सिर्फ गार्निशिंग और प्लेटिंग पे ही अगर मैं फोकस करूं तो मैं 1000 वीडियोस बना सकता हूं या बना सकती हूं। तो नए क्रिएटर्स को क्या डायरेक्शन चूज करनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप उनको थोड़ा सा हेल्प करें। डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले कहा कि विजन काफी जरूरी है कि आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो विजन इज नेसेसरी। इन माय केस इट वाज ऑल अबाउट मराठी क्यूजिन, बट सिंस आई एम फूडी आई लाइक टू कुक के ऐसे नहीं कि मैं उसी प्लेटफॉर्म में अटकी रहूं। आई एक्सप्लोर नेशनल क्यूजिन एज वेल। सो दिस इज समथिंग हेल्प मी आउट कि मराठी चैनल है तो माय स्टडी एंड रिसर्च एरिया रिवॉल्व्स अराउंड मराठी क्यूजिन। अब हिंदी चैनल है तो वहां पर मुझे लिबर्टी मिलती है, लिवरेज मिलता है कि जो नेशनल क्यूजिन है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट और रीजन ऑफ इंडिया, जैसे आसाम नॉर्थ ईस्टर्न क्यूजिन है या फिर साउथ इंडियन क्यूजिन है, तो फिर वो लर्न करके वो लोगों तक पहुंचाना। सो दिस इज समथिंग आई मुझे लगता है कि यू नीड टू बी ट्रू विथ योर विजन। फिर क्यूजिन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, यू गॉट टू बी ट्रू विथ योर विजन। पहले तो विजन सेट होना चाहिए कि क्या करना है, and you need to dedicate yourself for that particular cause or for that vision. So this is really important and you got to be consistent. चलते जाना है। एक और क्वेश्चन विजन चूज करने के लिए, अभी एक सवाल भी हमारे पास आया, मैं आई विल कम बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन रेजोनेट्स विद व्हाट यू आर सेइंग। लोग बोल रहे हैं कि मैं सारी डिशेस तो नहीं बनाना जानती हूँ, पर मुझे जो आता है मैं वही बनाती हूँ। अब कैसे मैं सारी डिशेस बनाऊं, क्योंकि आपके लिए भी ये शायद चैलेंज रहा होगा शुरू में कि आपको शायद सारी डिशेस नहीं आती, लेकिन आज के टाइम में आप बहुत सारी वेरियस डिशेस बनाती हैं अपने चैनल पे। सो हाउ डू यू जगल बिटवीन व्हाट आई नो वर्सेस व्हाट आई नीड टू लर्न? डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रीजनल क्यूजिन है
तो भी इसके लिए कोई क्लियर स्कूल नहीं है. वी रिलाई ऑन आवर मॉम्स या फिर ग्रैंड मदर है या फिर मामी मौसी है. अगर उससे पहले भी जाना है तो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बुक. So reading is a continuous process for me. I try to dive into old cultural books specifically. जैसे कि recently I explored the Aryan culture. So वहाँ पर mention है Aryans were the most civilized people. और उस time भी वो उनके पास personalized oven रहता था घर में. So definitely it's time taking, time consuming, but this is something I find passionate about. So I keep reading about different cuisines. Maharashtra is the primary source, and plus I try to explore national cuisine also. So definitely आपको बातें करनी है, आपको ट्रैवल करना है, जितने भी आपके रिलेटिव्स है, ओल्डर जनरेशन है, उनके साथ कम्युनिकेट करके, इंटरेक्ट करके, वो छोटी छोटी बातें या फिर जो रेसिपीज है कि हम मुझे पता है कि कभी मैंने बचपन में किसी के घर पे खाई थी लेकिन अभी याद नहीं आ रहा. So it really helps. मतलब going out, meeting different people, traveling, and along with this reading, continuous reading है, research. So this is a cumulative process, I can say. And फिर next part है कि घर पे try करना. फिर वो traditional recipes है, वो in today's time कि जब हड़बड़ी में है सब, तो available ingredients में वो कैसे फ्यूजन कर सकते हैं. मतलब उसका जो सोल है, ऑथेंटिसिटी है, वो मिस नहीं होनी चाहिए. एट द सेम टाइम कि लोगों को वो टीडियस भी नहीं लगना चाहिए. फॉर एग्जांपल पूरनपोली. सो पूरनपोली मैंने 2010 में पोस्ट की थी. सो आई वाज इन अमेरिका अराउंड दैट. तो मुझे पता था कि इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. सो आई वांटेड टू कट इट डाउन टू सिंगल और टू स्टेप प्रोसेस. तो आई केम अप विद द आइडिया ऑफ कुकिंग पूरन इन माइक्रोवेव इन 10 minutes. सो इट वाज quite easy for people to follow. So I would say it is a process and combination of everything. You have to put in effort in understanding that particular recipe, particular dish, research, reading, and then trying by yourself and making it look easy for the people who are following that recipe and interesting also. Yeah, that's great. मैं actually कुछ add करना चाह रहा था इसमें. Since this question is going and it's kind of linking with my question. Actually, as a chef, you know, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम बहुत सारी क्यूजीन्स को सीखें. और बहुत सारी क्यूजीन्स सीखने के बाद ना, जब आप बैठते हैं घर पे और सोचते हैं कि यार हमने क्या सीखा और उसको फनल करते हैं अपने थॉट्स को, तो सारी क्यूजीन्स में कॉमनैलिटी मिलती है आपको. बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, पैन रोस्टिंग, ग्रिलिंग, यू नो, ये बेसिक कुकिंग स्टेप्स हैं. अब चाइनीज में स्टर फ्राई बन रहा है, इंडिया में जालफ्रेजी बन रही है. अगर कहीं पे यू नो रोस्ट चिकन बन रहा है तो इंडिया में तंदूरी चिकन बन रहा है. सो सिमिलैरिटीज हैं. द फैक्ट इज कि जब आप कोई भी क्यूजीन जो आपको पता है उसे आप मास्टर करना शुरू करते हैं और उसे रिलेट करना शुरू करते हैं दूसरी क्यूजीन्स के साथ, तब आप देखते हैं कि हाँ यार सिमिलैरिटी है, ये तो मैं बना सकती हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ. You know, so that kind of motivation then automatically comes in your heart कि हाँ, I can do this. So दूसरी चीज ये है कि हेमा जी, शंपा जी, कविता जी और मधुरा जी को अगर सिर्फ इसी स्क्रीन को मिलाया जाए तो इंडिया में कुछ 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ लोग इन्हें फॉलो करते हैं. ठीक है, जब 2.5 करोड़ लोग इनसे सीख सकते हैं तो क्या मैं नहीं सीख सकता इनसे? बिल्कुल सीख सकता हूँ. हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं. डेफिनेटली सर, हम भी आपके बहुत सारे शोज फॉलो करते हैं. स्पेसिफिकली जब मुझे नॉन महाराष्ट्रियन खाना सीखना है, आपका जो नॉर्दर्न फ्लेवर्स शो है, इट रियली हेल्प्स मी आउट. क्योंकि रीडिंग से तो ठीक है, आप थियरी क्लियर हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के लिए ना ये विजुअल प्रेजेंटेशन काफी हेल्पफुल होता है. तो मुझे वो आपका नॉर्दर्न फ्लेवर्स बहुत हेल्पफुल होता है. थैंक यू. ओके, मूविंग ऑन टू शंपा जी. आप यू नो बंगाली हैं फॉर श्योर, एंड मुझे पर्सनली बंगाली खाना बहुत पसंद है. I personally feel that out of all the other cuisines that we have in our country, Bengali is a very special cuisine क्योंकि वो हर course, I can say, you know, dessert is a course, meat is a course, vegetable is a course, उसे बहुत seriously लेते हैं. मतलब you know, हर चीज में मतलब इतना तीखा होना चाहिए तो इतना मीठा होना चाहिए, इससे ज्यादा मीठा हुआ तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा. You know, so now Bengali is a cooking which requires precision.
a lot of precision, and I think that precision flows from generations. You know, आपके पेरेंट्स से आता है, आपके लोगों से आता है. Now, how do you take that precision and by the medium of social media, by the medium of YouTube, by the medium of any other video, how do you transfer that precision? एक्चुअली बंगाली मैंने सारे बंगाली बहुत ही फूडी होता है, मतलब फूड के मामले में बंगाली बहुत क्या बोलूं, मतलब मैक्सिमम बंगाली मतलब खाने का शौकीन होता है. और बंगाली का जो क्विजिन है, मतलब फिश का एक अलग से पार्ट होता है. मिठाई मतलब मिष्टी भीषण फेमस, और एंड चिकन तो चिकन रहता है, और बहुत सारे वेजिटेरियन मैंने वेज करी रहता है, जैसे शुक्तो, जैसे छानार कोफ्ता, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल मतलब रेसिपीज है. और वो सारे रेसिपीज मैंने तो मेरे मम्मी से सीखा, कुछ दादी से सीखा, कुछ नानी से सीखा, ऐसा कुछ है. और बहुत सारे रेसिपीज ऐसा है जो आसपास के लोगों से भी सीखा, मतलब कोई साथी ये डिश अच्छा बनाता है तो उससे वो सीखा. तो ये सारे पहले से तो कुछ भी नहीं पता था, फिर जब सीखना शुरू किया तो फिर लगा कि बहुत सारे सीखने को है. और ये सारे रेसिपीज जो बहुत सारे रेसिपीज है वो लोगों तक पहुंचाना है. और इसीलिए मैं मेरे ये जर्नी शुरू किया कि पहले सीखना शुरू किया. बहुत सारे बुक्स कलेक्ट किया हमारी बंगाल से, फिर उसे घर में पकाया, फिर देखा कि ये रेसिपीज ऐसा है तो वो रेसिपीज ऐसा है. बहुत सारे बार पकाने से पता चला कि ये अच्छा टेस्ट है, और फिर बार बार करने से एग्जैक्ट जो टेस्ट है वो मतलब सामने आया. तो वो रेसिपीज फिर मैं अपने दर्शकों को दिखाया. ऐसे करके मतलब डेडिकेट होके फिर चैनल में अपलोड किया वो बहुत सारे रेसिपीज को. Okay, so thank you so much, शंपा जी. Now हेमा जी, कविता जी, मधुरा जी एंड शंपा जी, मैं आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल से, आप इस क्राउड से पहली बार शायद मिल रहे हैं, और इनको अगर आप एक टिप, also that all the lovely ladies of India and me are on the screen, तो मैं एक क्विक फोटो भी खींचना चाहता हूँ. And there you go. Okay, so starting with Hema ji, एक tip to all the winners of Apna Food Business. So first of all, excuse me. First of all, I'd like to congratulate all the winners who've come this far. Excuse me. Sorry. Hema ji, if you want to have a glass of water, I can go to Kavita ji then, and then I can come back to you. Sure, please. Go ahead. Yeah, Kavita. अजय जी, हाँ जी, आपके दिल से एक टिप क्या? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप YouTube क्रिएटर बनना चाहते हैं या चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तब तो पैसे के बारे में सोचिए. लेकिन अगर YouTube क्रिएटर बन रहे हैं तो पैसा भूल जाइए, सिर्फ दिल लगा के काम कीजिए, पैसे आने ही हैं. एकदम सिंपल और साफ सुथरे वर्ड में कहूंगी कि मेहनत करोगे तो पैसा आना ही है, कोई नहीं रोक सकता. Superb. Over back to Hema ji. Thank you. So first of all, congratulations to all the winners and participants who've come this far. I think it's wonderful that you've embarked on this. I think Maggie is going to help you throughout. It's a wonderful opportunity. Please take it, please use it, because when we all started, I don't think we got this platform. It was a lot of hard work that we came this far. So please use it. And the one tip I would like to give them is see what works for you. Start with your strengths so you can, improve on those. Start with what you know and then build on it. Okay. So because you can get discouraged very easily if you try something that you don't know or try something very difficult. So start very simple and then learn as you go along, update yourself, keep learning. It's a process. It's a never ending process. So I still don't know many things, but I learn. And cooking is just wonderful. I love to cook. I love to eat. Be happy doing it. Enjoy yourselves. Just be happy. Wow. Enjoy yourselves and be happy. That's a great message for everyone. जो भी कर रहे हैं खुशी से करिए. कविता जी ने बोला कि पैसे की चिंता मत करिए, पैसे आने ही हैं. अगर दिल से करेंगे, अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ती जाएंगी. ओवर टू मधुरा जी, आप क्या बोलेंगे?
try to find out your area of interest. That is the important, because that is something drives you and it will make you keep going for longer period of time. So पहले तो है कि आपको में इंटरेस्ट है. मराठी में जैसे कहते हैं स्वच्छोड़ कि there is always each person has that area of interest कि दिल लगाकर वो काम कर सकते हैं. So try to figure that out, try to find out it, and then dedicate yourself for that vision or for that cause, I would say. So you have to be true to that vision. और ऐसा नहीं है कि फिर पैसे के बारे में सोचना नहीं. Yes, you need to balance out everything. कि अगर if I am putting in effort, in return if I am getting results or not, or I am doing it selflessly. For me, when I started off, it was a pure selfless act. मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, पैसा चाहिए ही चाहिए. लेकिन slowly we मतलब हो गया वो. And since everybody is trying to get into business, now we have our own brand, own label, जो spices में है. So जैसे मैंने कहा, मेरा रेसिपी बुक है कि you got to be true to your vision. तो मेरा विजन है मराठी क्यूजिन. तो जो बुक है कि I know कि मेरे पास रेसिपीज हैं, लेकिन I don't have enough time कि I make videos around each recipe and put up over the media. So मैंने वो रेसिपीज लिख दी जो कुछ भी मेरे पास है अवेलेबल है. And I came up with a recipe book. So it worked really well. Then we came up with our brand, that is masala. Again, the masala focus is in line with our vision. These are pure Marathi authentic masala, goda masala, badgi mirchi, or kanda lasun masala, which we use on everyday basis. And my nani or dadi, they were making in large quantities around those time, but due to time limit and everybody is working, they are not able to make it at home. So this is a easiest way to get into their kitchen. So definitely a digital platform amazing hai. You try to leverage it, and you don't have to sacrifice your vision while doing so. So be consistent and dedicate yourself. Great message. Thank you, Madhura ji. Have your vision very clear. Don't stop. Keep going. इन सब के बीच में से मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मैं बाइबल में बिलीव करता हूँ. आई एम अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन. एंड बाइबल में एक चीज लिखा है जब परमेश्वर कहता है कि माई पीपल पेरिश बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी विजन. एक्चुअली बिजनेसेस के लिए बिल्कुल सही है. किसी भी बिजनेस में अगर विजन नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो वेरी वेल सेड मधुरा जी. थैंक यू सो मच. ओवर टू शंपा जी. एक दिल से बिल्कुल एक मिष्टी बात. मैं यही कहना चाहूंगी कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कंटेंट में थोड़ा कुछ नयापन होना चाहिए. और पहले कैमरा के एंगल वो सब सोचने की बात नहीं है, लेकिन कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके कंटेंट में कुछ नया होना चाहिए कि ऑडियंस को खींच सके आपके और लगे रहना चाहिए. मतलब ये आपको फेम कुछ दिनों में मिल सकता है, लेकिन और टाइम भी ले सकता है, लेकिन लगे रहना है. मतलब कुछ दिनों के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो. ऐसा नहीं, ऐसे करने से नहीं चलेगा. आपको लगे रहना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा. ग्रेट. लगे रहना है. और अगर आप मेरे से पूछें कि मेरे दिल से क्या मैसेज आप सबके लिए, तो मेरे लिए एक मैसेज वो है जो आप कई बार टीवी पे सुन चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री से. मेरे 130 करोड़ देशवासियों, ये जो 130 करोड़ है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है. मतलब हमारा देश बहुत बड़ा है. सो हमारा देश itself is 130 crores, which means 1.3 billion. We're not talking a million followers, we're talking billion followers. Then we move out to other countries, other places. तो आप लगे रहेंगे ना, जिस तरह से सबने बोला, लगे रहेंगे, विजन रहेगी, मेहनत करते रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और दिल से खाना बनाते रहेंगे, तो मिलियन क्या बिलियन तक पहुंच जाएंगे. डोंट वरी. ग्रेट. अब thank you so much for your time and in this fashion, and I really enjoyed talking to all of you. Now is the time for question and answer. और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, तो मैं आपसे मात्र आधा घंटा और चाहूंगा. आई नो कि आप सब बिजी हैं और इस समय कुछ कई घरों में लाइट बड़ी अच्छी है, तो शायद अभी शूट रुका होगा लेकिन आधा घंटा और चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं. एंड आई वुड लाइक टू आस्क. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहिणी कुलकर्णी. She is asking, please suggest how to select which recipe to upload in the beginning.
So I think I want to direct this question to शंपा जी, क्योंकि I think मैं और शंपा जी इस बिजनेस में थोड़े से नए हैं, तो आपने पहली रेसिपी कैसे चुनी और क्यों चुनी? मैंने पहले रेसिपी ऐसा चुना कि बहुत फेमस हो, मतलब बंगाल का जो फेमस रेसिपीज है वो मैंने पहले चूज किया, क्योंकि वो फेमस रेसिपीज का सर्च ज्यादा होता है, इसलिए वो रेसिपीज पहले चुनना चाहिए कि जो फेमस हो। ये मैंने बंगाली में बंगाल का चूज किया। आप जहाँ के हैं, जिस लैंग्वेज में आप वीडियो डाल रहे हैं उसका आप जहाँ के हैं, जैसे मतलब गुजराती अगर हो तो गुजराती भी फेमस डिश, या पंजाबी हो या महाराष्ट्रियन हो, जहाँ जो भी आप है तो उसमें फेमस डिश को आप पहले ट्राई कीजिए। और एक बात दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। अगर कुछ फेस्टिवल्स उस समय है तो फेस्टिवल्स वाला आप कुछ डिश पहले अपलोड कर सकते हैं। तो फेस्टिवल्स में बहुत सारे सर्चिंग होता है, बहुत सारे डिशेस का सर्चिंग होता है, तो मुझे लगता है कि कोई फेमस डिशेस से ही शुरू करना चाहिए। ग्रेट, दैट्स ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस। अगला क्वेश्चन है कविता जी के लिए। कविता जी, आकांक्षा शेट्टी जी पूछ रही हैं कि हाउ डू यू कम अप विद कैची यूट्यूब टाइटल नेम्स एंड दे आर ऑलवेज वेरी यूनिक एंड लॉन्ग, एंड डू यू यूज हैशटैग्स और नो? वीडियो पोस्ट करने के टाइम पे तो हैशटैग यूज करना चाहिए, मेरे मतलब सबको ही करते हैं। तो नाम जो किचन का आप सोच रहे हैं, जैसे मैंने अपना नाम सोचा कि अब मेरा नाम है तो मेरे नाम से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि अगर लोग देखेंगे तो मेरे नाम से ही मुझे पहचानेंगे। और किचन मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि किचन से लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये कुकिंग का ही वीडियो है। तो मैंने किचन और अपना नाम दोनों ऐड किया था। और जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो हैशटैग जरूर डालें। हैशटैग कौन सी रेसिपी है या आपके चैनल का नाम, उस रेसिपी को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो हैशटैग बहुत जरूरी होता है। ग्रेट। अगला क्वेश्चन हेमा जी के लिए है। काव्या पूछ रही हैं कि प्लीज शेयर सम आइडियाज ऑन हाउ डू यू प्लान द शेड्यूल if you want to upload videos every day. How do we plan the video shoot and then upload every day with editing, etc., especially when you do it all by yourself? This will really help me to plan accordingly. So if you're planning to publish it next week, you'll have to finish your shooting and everything the prior week, and take at least about 2 days to edit. So you know what you want to do, how long it takes. See, for example, for me, I had a team doing it. So we have an edit team, we have a camera crew and everything. So they take care of everything. But it definitely takes one whole day to edit one video. So you have to plan your recipes, your shoot days and everything. At least the whole process takes about 3 days. 1 day to shoot, 1 day to edit. And then if you know which day you want to publish, make sure you cut it to the YouTube measurements, whatever you need to do. Use your hashtags, your general tags, the vidIQ tags, everything, whatever you require, and then you need to publish that. So it definitely takes about 3 days if you want to publish one video. In a professional level, that's what I'm saying. Yeah, that's great piece of advice. Thank you, Himaji. Next question for Madhura ji from Anubhav Gupta. Moreover, though I am consistent, but I get put off sometimes when I don't get sufficient views. What should I do? I'll club another question because it's very similar. Anjali Singh, please share a challenge or failure story. What went wrong and how you dealt with it? So दोनों क्वेश्चन काफी सिमिलर हैं, इसलिए मैंने एक साथ जोड़ दिए हैं. So if you would like to share a failure story, which I think all of us will have, but अगर आप अपना एक शेयर करना चाहेंगे. Definitely. Views, मतलब views, it's a process. Since it's a digital media, तो काफी सारे factors रहते हैं. Views कम ज्यादा होते रहते हैं. It is the same story with every creator, I can say. It's not like कि we are the top creator तो views consistent रहते हैं. So don't get disappointed कि एक वीडियो में कम view आए. बस be consistent. Like keep putting up your content and as promised. मतलब जो आपने viewers को promise किया उस दिन और उस टाइम पर वो कंटेंट जाना चाहिए. और चैलेंजेस है तो काफी सारे आते हैं, एंड जैसे कि कविता जी ने कहा या फिर हेमा जी ने कहा कि इट इज अगेन ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर एवरीवन. फॉर मी, like I said earlier कि I am from commerce background, so technical difficulties काफी सारी थी. So I started off with my personal digital camera. मेरे पास tripod भी नहीं था. I borrowed that from my friend. Table lamps use कर शुरू की. फिर within 6 months we switched to professional things. Failures,
डेफिनेटली, मतलब 2009 में मैंने स्टार्ट किया तो आई हैव सीन द चेंजेस और जंप अप द वे कंटेंट it's getting consumed. For me, for my first channel, English channel, it took me whole 6 years to hit the 1 lakh subscriber count. For Marathi, it happened within 18 months. For 1 million, it took hardly 18 months. For English, it took 6 long years to reach 1 lakh mark. So that is the difference. So upset nahi hona hai. Be true to your vision. Definitely. कभी भी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट सीधा नहीं जाता, ऐसे ऐसे ही रहता है. इन आवर केस आल्सो, बी देयर, होल्ड ऑन टाइट. Yeah, that's all I can say. Great. Now this is very very exciting, क्योंकि success is always defined by what failure you had. कभी भी सक्सेस बिना फेलियर के आते ही नहीं. सो फेलियर नहीं हुआ तो सक्सेस आएगी कैसे? अगला क्वेश्चन वापस से कविता जी के लिए फ्रॉम निधि बिंदल. Is it a good idea to amend, twist original recipes to keep the audience interests high? मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि जो ऑथेंटिक रेसिपी या ट्रेडिशनल रेसिपीज होती है जहाँ की, उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ के लोगों को बुरा लगता है. मैंने भी शुरुआत में ये गलती की थी, मैंने भी कुछ ट्विस्ट किए थे, लेकिन लोग ऑफेंड होते हैं इससे. अगर मैं महाराष्ट्रियन कुजिन में थोड़ा सा भी चेंज करूँ तो बोलते नहीं तुमको बनाना नहीं आता, तुम अपना चैनल बंद करो. हाँ, तो वो बात होती है कि अगर आप कुछ बहुत ही चेंज करके कुछ यूनिक सा बना रहे हो तब वो चेंज लोगों को पसंद आता है, लेकिन ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपीज में जनरली लोगों को पसंद नहीं आता. अगर बंगाली कुजिन बना रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है. उसमें आपको मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करना है. उसमें अगर आपने रिफाइन ऑयल यूज कर दिया तो लोग वहीं पे वीडियो बंद कर देंगे. तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने कुछ यूनिक चेंज किया है, लोगों को पसंद आ रहा है आपके चैनल पे, तब आप वो चेंज मेंटेन कीजिए. अदरवाइज हमें ट्रेडिशनल रेसिपीज से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कविता जी, क्योंकि एज अ शेफ ये वर्ड जो फ्यूजन है ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया इंडिया में. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट फ्यूजन इज कंफ्यूजन. फ्यूजन का मतलब कुछ और था, मतलब कुछ और बना दिया गया. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस 1 minute टू एक्सप्लेन माई थॉट प्रोसेस ऑन दिस, कि अगर किसी रेसिपी के ऊपर आप उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, हाँ, तब ठीक है, बट बेस फाउंडेशन वही होना चाहिए. यू शुड नॉट प्ले विद द एक्चुअल फ्लेवर ऑफ दैट डिश. उसका सही टेस्ट ये है कि अगर आप आंख बंद करके आपके मुंह में वो डिश डाली जाए, और अगर आपके लास्ट वाला टेस्ट वो ऑथेंटिक टेस्ट लेके आता है, मतलब आपने उस चीज को अचीव किया. That's it. I think that's the key. So आप जो भी बना रहे हैं, अगर आप if you want to play around with that limitation, that foundation should never be shaken. Thank you so much, Kavita ji, for that. Next one is for Hema ji. What types of video are more successful, short and crisp or long? The audio wasn't clear. Ajay ji, can you please repeat that? Or elaborated ones. Yeah. What type of video? This is a question. Yeah. Question from Neeta Sabnani ji. What type of videos are more successful, short and crisp or long and elaborated ones? So I think every channel works differently. If you're starting off with a short format, like maybe for 3 minutes or 4 minutes, you want to keep it short and interesting. And if people start liking that, maybe you can continue that. Some of them have very long content, about 15 minutes, 20 minutes. So every channel works differently. So see what works for you. I think I would say that. So for everybody, everything is different. So for some of them, they just post 2-minute content, or maybe even like a less than 3-minute content. There are channels who post for 25 minutes to 30-minute content. It's very elaborate and it works perfectly well for them. So just start off to see what works for you, and you can just experiment here and there. And whatever works for you, I think you should just continue with that. Great. Sounds good. Madhura ji, next question for you. और बड़ा apt question है आपके लिए. सीमा गुप्ता जी पूछ रही हैं कि I speak 4 languages: English, Hindi, Marathi and Malayalam. Is it good idea to make videos in all 4? डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि ड्यू टू लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन वो ज्यादा लोगों तक रेसिपी जाती नहीं. सो अगेन इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है. अलग अलग लैंग्वेज में वो वीडियो या फिर रेसिपी पोस्ट करना. इफ यू रियली वांट कि वो रेसिपी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है,
तो डेफिनेटली दिस इज अ रियली गुड आइडिया कि आप अलग अलग लैंग्वेज में सेम रेसिपी पोस्ट कर सकते हैं। 4 लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कविता जी के लिए है कि आप मतलब घर के रेसिपीज बनाती हैं, लेकिन कैसे चूज करती हैं कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होगी? रेसिपी चूज बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं लंच में मैं बनाती हूँ वही शूट कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी लोगों को थोड़ी डिफरेंट वीडियो चाहिए होता है या डिफरेंट रेसिपी चाहिए होता है, तो ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको ट्रेंड से वाकिफ होना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन किस टाइप की रेसिपीज ज्यादा वर्कआउट कर रही है। इसके लिए गूगल ट्रेंड भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप गूगल ट्रेंड पे देखोगे कि लास्ट 3 मंथ में कौन सी रेसिपीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये रेसिपीज चल रही है। अभी मिठाई का सीजन है तो मिठाई चल रहा है, अभी रेनी सीजन है तो पकौड़े चल रहे हैं, तो वो सर्च इंजन आपको पता चलता है। तो मार्केट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि किस टाइप के वीडियोस ज्यादा वर्कआउट करते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन शंपा जी के लिए है फ्रॉम कृति गुप्ता जी। हाउ मच टाइम और हाउ मेनी वीडियोस इट टुक फॉर यू टू रीच द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स? मेरे लिए, मुझे तो अभी तक याद नहीं है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर के लिए शायद 15-16 वीडियो तो लगी थी शायद। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कृति गुप्ता जी, मुझे कहीं ना कहीं पीछे से सेंस आ रही है कि 1000 सब्सक्राइबर मतलब मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगी। ये गलत गोल है, ये गलत स्टार्ट है। इसको मत देखिए कि कब आएगा पैसा। कविता जी ने बताया कि भैया काम करो, पैसा आ जाएगा, चिंता मत करो, कहीं नहीं जाएगा, अगर आप मेहनत करोगे तो आएगा। अजय जी मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था उसके 6 महीने बाद मुझे $1 मिला था। हाँ, और $1 की पार्टी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ 1200 रुपए खर्च करके किए थे। तो वो मेरे हस्बैंड अभी भी मेरे ऊपर हंसे कि $1 कमा के इतना पार्टी कौन करता है, लेकिन वो मेरी खुशी थी कि मैंने 6 मंथ मेहनत की, उसके बाद मेरे को $1 मिला। तो वो खुशी होता है कि पैसा मॉनेटरी टर्म में नहीं देखा जाता है, ये खुशी होती है कि अगर आपने मेहनत की और आपने अर्निंग शुरू की है, तो वो जज्बा होना चाहिए। हाँ, that is so true, क्योंकि हमें मैं भी थोड़ा सा मैं अपने pearls of wisdom डालना चाहूंगा यहाँ पे। मेरी जिंदगी में जो काम किए हैं कि आई थिंक सेलिब्रेटिंग सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी हो। हर मोड पर सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहिए। आई थिंक यूट्यूब भी ये बात को समझता है कि जब आपके 100,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको एक सिल्वर प्लेट आती है, फिर 1 मिलियन पे गोल्ड प्लेट आती है। दे ऑल्सो आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस, बट सक्सेस सेलिब्रेट करने से आपको बूस्ट मिलता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। सो सेलिब्रेटिंग सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज Kavita ji said, but also what is very important is what Madhura ji said. I think the vision should be very clear. अगर आप एक सक्सेस पैरामीटर पे आ गए और वहां पे बोला अरे यार बस मैंने तो दुनिया जीत ली है, तो खत्म ना। विजन तो बड़ी होनी चाहिए, विजन अगर इतनी सी हुई तो आगे कैसे बढ़े। So I think that is also very, very important. Okay, so the next question is for, I would ask Hema ji. Sushreta ji पूछ रही है, how do I collaborate? There are so many creators on YouTube I wish to collaborate with. What are different ideas to collaborate? Different ideas to collaborate. So does she have a channel? Sushreta, does she have a channel? I have no idea. So, I mean, you have to approach the creators and, you need to see what is it that you want to collaborate with, with them for. So that's very important. And the creators also have to accept that. So it's not very easy to just go and say, I want to collaborate with you. Can you do this for me? That doesn't work that way. So there are a lot of things that have to be done. And both the parties, whoever you want to collaborate with, have to accept that. They should feel comfortable. They can choose to say no also. So it doesn't matter. But I think it's important to see what is that you want to collaborate for, or with whom, whatever. Yeah. And to see if you can benefit from that. Both the parties have to be able to benefit from that collaboration, right? Yeah. So Sushreta ji does have a YouTube channel. She just messaged, but this is not to demotivate you. What she's trying to say also is that obviously collaboration is something which will come later in your life. Yes. It should not start with collaboration. True. चैनल और हेमा जी का चैनल बहुत बड़ा है, मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ और मैं भी बहुत बड़ा हो जाऊंगा। नहीं, वो भी तो कहीं ना कहीं पहुंचे अपनी मेहनत से। आप मेहनत से पहुंचिए। मेरे फर्स्ट मेंटोर ने कहा था, अजय नेवर शो ऑफ,
if you're good, people will see you. There's a difference between showing off and you being seen. I think it's important for you to be seen. आप एक बार जब दिखने लग जाएंगे ना, तो ऐसा होना चाहिए कि भैया खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे आके पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. कि कभी मैं एक बात कहना चाहती थी अजय जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस बारे में. मेरे चैनल जब शुरू हुआ था तो मेरे चैनल में सिर्फ कुकिंग वीडियो आता है, मैं सामने आके कुकिंग नहीं करती हूँ. तो बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देख मजा रही थी कि शंपा जी आप सामने आइए, आप सामने आइए. लेकिन मैंने मतलब ठान के रखी थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा फिर मैं ऑडियंस के सामने आऊंगी. तो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, फिर मैं एक वीडियो बनाया 1 लाख सब्सक्राइबर को सेलिब्रेट करने के लिए. फिर मैं उन सबके सामने आए और मेरे सारे ऑडियंस बहुत खुश हुए. तो वही बात है कि मुझे पहले कोई भी पहचान थी नहीं कि मैं कौन हूँ, शंपा कौन है. लेकिन मेरे कुकिंग वीडियो तब तक बहुत लोगों में फेमस हो चुकी थी. 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, फिर मैं कैमरा के सामने आई. सुपर. और इसी नोट पे मैं एक लाइटर नोट भी छोड़ना चाहूंगा कि आप सबने शायद एक टाटा स्काई का एड देखा होगा. पूछने में क्या जाता है, आजकल इंस्टाग्राम पे हर जगह डायरेक्ट मैसेजेस है ना, छोड़ दीजिए, शायद एक्सेप्ट कर लें. क्या पता हेमा जी, कविता जी, मधुरा जी या शंपा जी बोले हाँ कोई बात नहीं, आइए आइए आइए, हम आपके साथ खाना बनाएंगे. सो इतना देखो, बिजनेस में उतर रहे हैं ना, तो इतना जिगर भी होना चाहिए कि कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएं. फेलियर से फेलियर की सोच के आप अगर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो फिर आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे. अच्छा, अब अगला सवाल मुझसे है. मेरे से पूछा जा रहा है ईश्वर्या श्रीनिवासन जी. सर, एनी टिप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग फॉर रेसिपीज? आई फील अ स्टोरी वेल टोल्ड स्पेशली टू अचीव सक्सेस इन एनी विजुअल मीडिया. पर मैं ये सवाल देना चाहूंगा इस ग्रुप को. एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दिस? आप ही से सुनना चाहेंगे सर. Ajay ji, maybe you should say that. You should answer for all of us, on behalf of all of us. Okay, so I think ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है अभी, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ से शेयर कर रहे हैं, सब लोग अपने सक्सेसेस, अपने फेलियर्स को शेयर कर रहे हैं. और मेरी लाइफ में भी ऑब्वियसली सक्सेसेस और फेलियर्स रहे हैं, तभी हम यहाँ पे आज पहुंचे हैं, नहीं तो ऐसे पहुंच नहीं सकते हैं. सो मेरे सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है ट्रैवल. और ट्रैवल मैं जब भी करता हूँ, जैसे आई थिंक मधुरा जी ने भी कहा था कि जब भी आप ट्रैवल करते हो आप चीजों को ढूंढते हो. मैं हमेशा एक एग्जाम्पल यूज करता हूँ, एक ड्राई स्पॉन्ज का. कभी कॉलेज में किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ लोगों को, तो स्पेशली यंग चिल्ड्रन, यंग बच्चों को जो एंटरप्रेन्योर या क्रिएटर्स या कॉलेज गोइंग पीपल होते हैं, उनको बोलता हूँ कि भैया एक ड्राई स्पॉन्ज की तरह बनो. नॉलेज बट रही है, सीख लो, soak it. So what will happen is exactly what happened to me. मैं जहां पे भी गया, वहां से मैं नॉलेज को सोखता गया. अब उसे मुझे अपने शब्दों में बुनने में आसानी तभी होगी जब मैं वो स्टोरी को जानता हूं. अगर मैं जानता हूं कि लाल मांस राजस्थान में 5 तरीके से बनता है, if I know this information, then only I can recite this story. कि भैया आप उदयपुर जाएंगे ना तो वहां पर लाल मांस को धुंगार दी जाती है. यही चीज जब आप जोधपुर में जाएंगे तो आप जोधपुर में लाल मांस को आप इतना पकाते हैं कि वो लाल मांस काला मांस बन जाता है. तो लोगों को लगता है कि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ. ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है, ये मैं घूमा हूँ, ये मैंने टेस्ट किया है. सो आई थिंक योर फूड, योर एंथुजियाज्म टुवर्ड्स नोइंग एंड वांटिंग टू नो स्टफ should become your story, and that's how you become a good storyteller. Yes, very well said कि अगर कहानी किसी चीज के भी साथ है तो लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, because there is a medium which एक स्क्रीन से आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ या ये 4 सक्सेसफुल लेडीज आपको कुछ बता रही हैं, आप इनसे इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये सक्सेसफुल हैं, लेकिन इनकी जो स्टोरी आप सुनेंगे तो वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगी. So I think that is where it is important to just keep grabbing, keep being dry, keep being hungry for more. I'm always hungry. Wow, this has been such an outstanding session. I have gained so much. So next question going to
कविता जी, okay. Anjali Singh पूछ रही है, how do you keep yourself motivated? I know each day is not the same. Some of the days you are and you don't feel well. In that case, how do you plan your work in that scenario? ये क्वेश्चन मेरे लिए है अजय जी? वैसे उन्होंने कहीं लिखा नहीं है, मैंने आपसे पूछ लिया. नहीं, मेरे को लगा कि शंपा जी के लिए. मोटिवेशन आपके व्यूअर्स ही है. जब व्यूअर्स अच्छे कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, हमारे वीडियो का कोई इंतजार कर रहा है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो इसके हिसाब से, जैसे मुझे पता है कि मुझे वीक में 3 दिन वीडियो पोस्ट करना है, और मैं अगर कल की बात करूँ तो कल मेरा वीडियो पोस्ट डे है और मैंने अभी तक शूट नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि कल मेरे को 11 बजे वीडियो पोस्ट करना है. तो वो चीजें होती है कि अगर मैं पोस्ट नहीं करूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि आज क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है. तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है. तो एक फैमिली टाइप की रिलेशनशिप हो जाती है आपके व्यूअर से. तो वो कनेक्शन जो होता है वो फील होता है. तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रेशर फील होता है कि नहीं, मेरे वीडियो का लोग इंतजार करते हैं तो मेरे को करना है. तो मेरे लिए तो यही डेडिकेशन है. मैम, साथ मैं पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन अजय चोपड़ा की तरफ से है कि वो आपने जो तन्मय भट्ट के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन किया था, उसके बारे में कुछ बताइए सबको. वो तो आपने देखा ही होगा ना. नहीं, मैंने देखा, बट I just want to kind of say that that was very interesting because Tanmay being Tanmay and you being Kavita Kitchen was very interesting to us. So मैं just आपका experience सबके साथ 30 seconds if you want to share. तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि जब सबको ही खाना बना रहे थे, जो जिसको नहीं भी आता था, या हर कोई खाना बना रहा था, चाहे लेडीज जेंट्स, सब अपने घर में हम लोग पड़े हुए थे. और उस टाइम पे मैं रियलाइज कर रही थी कि बेसिक कुकिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रोटी चावल दाल ये सारे लोगों को ज्यादा हेल्प करेगी. और उस टाइम में ऐसा हुआ कि दिलजीत दोसांझ जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सारे इंस्टा स्टोरी में टैग किया कि कविता किचन से मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ. बहुत सारे बॉलीवुड स्टार ने उस समय शायद मेरे चैनल पे आए और उन्होंने सीखा. उस टाइम पे तन्मय जी भी आए, और तन्मय की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि हम इतने साल से उनके जानते हैं, मतलब AIB के थ्रू इतने साल से. कि तन्मय भट्ट ने जब मेरे को फोन किया कि मुझे आपके साथ कोलैब करना है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं डर भी रही थी. जैसे मैं थोड़ी शाई नेचर की हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि तन्मय सबको रोस्ट करते हैं, मेरा रिएक्शन क्या होगा उस टाइम पे. और हमने कोई भी प्लान नहीं किया, हमारा सिर्फ जूम कॉल हुआ और उन्होंने वहां पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. हम अनप्लान्ड शूट करेंगे, मैं जो भी बात करूंगा, आप जो भी बात करोगे, सब दिल से आना चाहिए. और हमने ऐसे ही वीडियो प्लान किया, नेचुरल. और वो वीडियो शूट होके गया और लोगों का बहुत ही अच्छा, मतलब रिएक्शन बहुत अच्छा है लोगों का. इनफैक्ट कल मेरे घर में अमेज़न का कुरियर वाला बंदा आया था, उसने भी बोला कि मैम, तन्मय भट्ट आपको रोस्ट करता है तो आपको बुरा नहीं लगता. तो ऐसा अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि तन्मय के थ्रू भी लोग मुझे बहुत जानने लगे हैं. तो वो एक फनी मोमेंट था, जो उस टाइम पे लॉकडाउन में जो हमारी जो बर्डन थी हमारे ऊपर, सबके ऊपर, जो हम सिचुएशन से गुजर रहे थे, उसको लाइट अप करने के लिए वो मूड लाइटनिंग जो होता है ना, कि एक फ्रेशनेस लाया था मेरे दिमाग में. तो सुश्वेता जी, अब आप समझ जाइए कि कोलैबोरेशन जो है इस तरह से हो सकती है. ठीक है, जब आप सच में दिल से काम करते हैं, दिल से चीजें करते हैं, जैसे कविता जी ने करी, तो लोग आपको आके ढूंढेंगे, लोग आपको आके फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन मधुरा जी के लिए है. सूर्या सेनगुप्ता जी पूछ रही हैं कि कुड यू सजेस्ट सम गुड बुक्स टू लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडियन फूड एंड ओरिजिन ऑफ इंडियन रेसिपीज एंड इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली स्पाइसेस. KT आश्रय जी के बुक्स है, आपको भी पता होगा अजय सर. तो उसमें तो बेसिक्स काफी सारे क्लियर हो जाते हैं. और along with that I try to dig into कल्चरल बुक्स. जैसे कि मैंने कहा कि आर्यन या फिर सिंधु संस्कृति है, आर्यन संस्कृति है. भले वो बुक दिखने में बड़े बड़े हो, लेकिन एटलीस्ट 8-10 पन्ने उसमें रहते हैं कि वो कुकिंग के लिए डेडिकेट होते हैं. सो वो है. और महाराष्ट्रियन क्यूजिन आपको अगर स्पेसिफिकली लर्न करना है तो महाराष्ट्रियन कल्चर से रिलेटेड काफी सारे बुक्स है. या फिर महाराष्ट्र में अगर आप डिवाइड करते हैं कोकण कल्चर या फिर मराठवाड़ा कल्चर, खानदेश, तो उस रिलेटेड भी डेडिकेटेड बुक्स मिल जाते हैं. सो ये तो हो गया कल्चरल पार्ट. लेकिन अगर आपको कोर रेसिपीज सीखनी है तो डेफिनेटली कुछ रेसिपी बुक्स है पुराने. तो रिसेंट है कि चिन्मय दामले करके एक ऑथर है, तो उनकी टीम है, उन्होंने किताब कले करके एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया है. तो वो पुराने बुक्स है, उसमें से उन्होंने रेसिपी बुक स्टार्ट की. तो सूप शास्त्र उनका है, वो 18th सेंचुरी में लिखा हुआ बुक है. तो उन्होंने वो रिस्ट्रक्चर कर
सब लोगों के लिए दिया है। तो जो मेजरमेंट्स है उस टाइम हम लोग यूज करते थे तोला या फिर भार, वो अलॉन्ग विद दैट मेजरमेंट्स, और उन्होंने वो सिंप्लीफाई करके हमारे जनरेशन को समझ आए वैसे कन्वर्ट किया। तो सूप शास्त्र इज डेफिनेटली गुड बुक टू हैव इफ यू वांट टू लर्न रेसिपीज। थैंक यू सो मच मधुरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फटाफट पूछूंगा, 2 क्वेश्चंस और ले रहा हूं मैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। निधि मुक्तावले जी पूछ रही हैं, दिस क्वेश्चन फॉर शंपा जी, सॉरी रुचिका सिंह जी पूछ रही हैं, initially when we don't have a team, how can we manage it alone with shooting, editing, publishing on multiple social media platforms? So planning चाहिए, ढेर सारा planning चाहिए। In my case, I dedicate 1 week for filming and rest 3 weeks for reading, research and planning the content for that 1 week. So प्लानिंग, ढेर सारा प्लानिंग चाहिए। अगर मेरा विजन मराठी क्यूजिन है तो वो अगेन इट इज अ प्रोसेस की स्टिल आई एम लर्निंग कि अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि सीजन जो है एज पर सीजन, उस जमाने में दादी या फिर नानी क्या कुक करती थी। अब से समर इज अप्रोचिंग तो अम्बिल इज समथिंग कि रागी का अम्बिल बनाते थे। तो आई ट्राई टू डिजाइन रेसिपीज लाइक दैट कि सीजन क्या है, ट्रेडिशनली क्या बनाते थे और फिर वो इजी वे में अब क्या कर सकते। तो लॉट्स ऑफ प्लानिंग, ढेर सारा प्लानिंग चाहिए। आपका रोड मैप तैयार चाहिए कि अब ये मंथ है अप्रैल मंथ, गर्मियों का सीजन है, तो उसमें आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं ट्रेडिशनल रेसिपीज प्लस ट्रेंडिंग रेसिपीज का। सो इट इन्वॉल्व्स गुड अमाउंट ऑफ प्लानिंग एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स। थैंक यू शंपा जी। निधि मुक्तावला जी पूछ रही हैं कि आप व्हाट इज योर विजन गोइंग फॉरवर्ड? अभी तो पहले जब शुरू किया था तब तो रेगुलर एक रेसिपीज डालती थी, लेकिन अभी तो वीक में 3 या 4 रेसिपीज आते हैं। और पहले बहुत सारे रेसिपीज दिमाग में था, क्योंकि जो भी सारे बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपीज था पहले वो सारे कंप्लीट किया। और अभी नए नए रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा क्विक रेसिपीज, थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा गुजराती, थोड़ा मतलब बहुत सारे रेसिपीज कर रहे हैं। और मतलब इन फ्यूचर ऐसे ही करते रहूंगी और बहुत सारे ऐसे रेसिपीज लाना चाहूंगी जो बिगिनर्स है, जो कुकिंग पहले कुकिंग शुरू कर रही है उनके लिए अच्छे हो। क्योंकि बिगिनर्स जो है, बिगिनर्स सब्सक्राइबर्स और बिगिनर्स फॉलोअर्स और ऑडियंस जो होता है, तो वो पहले छोटा छोटा रेसिपीज ट्राई करना पसंद करते हैं, इजी रेसिपीज ट्राई करना पसंद करते हैं, जिसे आसानी से घर में रहते हुए चीजों से बनाते सके। तो वैसे ही कुछ रेसिपीज दिमाग में है और वही कुछ डालेंगे। और मेरे तो वैसे कोई टीम नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही टीम है। पहले जब शुरू किए थे तब तो रात 12 बजे के बाद मिडनाइट में शूटिंग करते थे और दोपहर को एडिटिंग करते थे और शाम को फिर पोस्ट करते थे। और अभी समय मिलता है तो आज अगर रात को शूट करते हैं तो दोपहर को एडिटिंग करके फिर अगले दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। ऐसे ही चल रहा है अभी शेड्यूल। Great, super. No scope of losing out, no scope of going slow. Hard work का कोई substitute नहीं है. Final question is for Hema ji. Deepti Bhatt पूछ रही हैं कि at what point can we start another channel when your existing channel is working well, and how do you advertise it? So once you're strong, you've got enough subscribers on the first channel. So then what happens is, that's how we started the second channel, the Tamil channel. And what we did was we started posting stories, we started posting community posts on the English channel to let them know that we have a Tamil channel. So I would go live, I would do story, excuse me. So I would go live and tell them that we also have a Tamil channel. So if you're interested, please post me the recipes in Tamil. And we would consistently do that because you have to keep telling them, because otherwise they will not know. So the Tamil channel, I think it's about 3 years old now that we started. And after we started the Tamil channel, like we got a call from Sun TV. So my shows were aired on Sun TV, the Tamil channel as well. Thank you so much. Personally, thank you so much, Hema ji, Kavita ji, Madhura ji, and Shampa ji. Your
inputs have been valuable to all the participants. I'm very sure about it कि यहाँ से अब जब वो शुरुआत करेंगे तो आपकी स्टोरी उनके दिल में रहेगी, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके दिल में रहेंगे. And thank you so much for taking the time out. For all the people who have asked so many more questions, वो सारे questions का जवाब आपको दिया जाएगा. All the further updates about the campaign will be shared with you, communicated with you on WhatsApp. I personally want to just take this moment to thank each one of you who have been here, taken time out of your very busy schedules. I know कि कोई रात को वीडियो बना रहा है, तो कोई हस्बैंड के साथ वीडियो बना रहा है, तो किसी को कल वीडियो पोस्ट करना है. लोगों को लगता होगा कि यार ये तो वीडियो पोस्ट करना क्या बड़ा काम है. बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है. इट इज समथिंग, क्योंकि हमने कमिटमेंट अपने आप से कर लिया है. और सलमान खान का डायलॉग तो आप लोग रोज बोलते होंगे ना, कमिटमेंट कर लिया तो हम किसी का नहीं सुनते. किसी का नहीं सुनेंगे. तो इसी कमिटमेंट के साथ आप लोग भी जाइए और बी मोटिवेटेड, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट. अरे कोलैबोरेशन से अजय जी याद आया कि मेरे को भी करना है आपके साथ कोलैबोरेशन. It will be a pleasure. In fact, मैं आपसे बातचीत करूंगा. मैं कुछ नया सोच रहा हूँ. तो I will talk to all of you separately. I think we should definitely collaborate, because I think India needs to know कि इंडियन खाना, मेरा एक दिल की इच्छा है. When I taste Bengali food, when I taste Assamese food, when I taste food which is unknown to people, यार ये इंडियन खाना है, ये लोगों को पता ही नहीं है. सब लोग खुश हैं, मतलब वो 70, 80, 90 डिशेस में खुश हैं लोग. राजमा चावल, पनीर मखनी, बटर चिकन, ये खाया तो बस हो गया. बट इंडियन खाना इससे कितना ज्यादा है. एंड आप लोगों के घरों से खाना निकल के आता है, बिकॉज I think that's the beauty of Indian food, that every home makes a different recipe. मधुरा जी का पूरन पोली का रेसिपी में कुछ डिफरेंट जरूर होगा उनके पड़ोसी के रेसिपी से. कविता जी का रेसिपी में कुछ डिफरेंट जरूर होगा. And that is what makes our cuisine so beautiful. And yes, we would definitely collaborate, and we would definitely want to spread this love to the entire country. I'm a firm believer of the fact, as I said, मेरे 130 करोड़ देशवासियों, हम आ रहे हैं. मैं भी क्रिएटर्स को यही बोलना चाहूंगी कि जब मौका मिले, जब जो भी आपका जो मेंटर क्रिएटर है वो जब भी सामने मिले ना, फटाक से कोलैबोरेशन की बात कर लो मेरे टाइप. मौके का फायदा उठाना चाहिए. थैंक यू सो मच अजय जी. काफी सारे इनपुट्स मिले आपके पास से. मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला कि यस, ट्रैवल करना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच कविता जी, हेमा जी, शर्मा जी. बहुत सारे अच्छे इनपुट्स मिले. And still learning and long way to go, definitely. बहुत कुछ सीखने. Thank you so much, Ajay ji, Sharma ji, Kavita ji, Madhura ji. It was lovely. The session was absolutely amazing. I loved it. Lovely meeting all of you, and thanks for this opportunity. Thank you so much. Thank you, Maggie, for organizing this. Because from here on, these 4 women have enabled 250 people to think differently, to create differently, and to go and make a big mark in this world. All the very best. Thank you very much. See you all very soon. Thank you. All the best. Bye. Bye.